questions I have jotted down. I would put up a few questions that the students, they study a lot, but like they have always the problem कि कैसे concentrate करें, study करें तो concentration कैसे हो उनका, टाइम मैनेजमेंट कैसे हो. कई बार टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आती है. बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी स्टडी करते हैं, करना भी चाहते हैं, बट कुछ इस तरह से हो जाता है कि उनका टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाता है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है. ये मैं चाहूंगी कि आप प्लीज थोड़ा सा इस पर जरूर गाइड करें. स्टडीज को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि दे थिंक दैट इट्स क्वाइट बोरिंग थिंग. पढ़ना है, ये सोचते ही सुनते ही उन्हें थोड़ा सा फील होने लगता है कि ओ नो, नॉट अगेन. कैसे स्टूडेंट्स उसको खुद ही अपनी नोट मेकिंग टेक्निक से या किसी भी तरह से कैसे उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. ऑफ कोर्स टीचर्स डू ट्राई अ लॉट, बट अगेन लाइक स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी, सो इट्स अप टू देम कि वो कैसे उसको और इंटरेस्टिंग बनाए. इस तरह के कुछ सवालों के जवाब हम चाहेंगे. और हाउ टू स्टडी एट होम, अभी तो वी हैव टू स्टडी फ्रॉम होम ओनली, दैट इज द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग. तो कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी है. ये चीजें भी अगर आप आंसर कर पाएंगे तो वील बी वेरी ग्रेटफुल टू यू. एंड ऑफ कोर्स द मेन थिंग दैट इज द एग्जाम्स, क्योंकि स्टूडेंट्स का फोकस होता है, इट्स ऑल ऑन लाइक वी हैव एग्जाम्स एंड वी हैव टू स्टडी फॉर एग्जाम्स. यदि ये सारी चीजें मैम अगर आप प्लीज हमें कुछ उसके ऊपर गाइड कर पाए तो विल बी very honored for that. The session is over to you. I have taken much of your time. Monica, now I request to Monica ma'am to start her motivational speech. Please, welcome. Sure. Thank you very much, Marti ma'am. Thank you very much, Naveen sir, for your kind and gentle words. And really, it's a bright privilege and pleasure to be with you. And I know Virgin Mary School is doing is working on the toes and leaving no stone unturned to in this pandemic era also to provide the best education to the children. And I know the untiring efforts of Marti ma'am, that she's always busy collecting material for the children and to the best providing best possibilities and opening new vistas, new horizons for you all. So you all are very fortunate that you've got such a principal, and I'm also very fortunate to have Marti ma'am and as a friend also. And I have always been inspired by her. I feel honored to be with you all children. And one important thing is that I also, as a mission, want to do something for the kids. So I got a fabulous opportunity over here. I'm very, very thankful to privilege. Thank you so much, ma'am, for confiding in me also. And I hope that this session comes out to be fruitful for the school, for my dear children who are listening to me. So thank you so much. I have to answer a lot of queries of yours, and definitely within this time period I have to complete it. So let me begin. Is my video off? No, it's on, ma'am. It's on. Okay. So, ma'am, you were talking about, first let us see, there are 7 elements before a child writes the exam. Okay, the 7 elements include interest in the subject, first of all. As long as there is no interest, the child will not be really inclined to study. So the most important thing is interest in the subject. And of course, there is the understanding factor, whether the child is able to understand or not. Since we have now the new normal, as you have already told in your pamphlet also, the new normal that we have to cope up with, and not only the pandemic and not only the online classes, but also like day before yesterday, we got the new system of education also. So amongst all these things, these are very puzzling to the children, right? So how to make a mark in the world that is so very competitive. तो उसमें जरूरी है कि हमारी जो पढ़ने की, लिखने की और लर्न करने की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेलेंट हो, तभी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाएंगे. क्योंकि एवरीबडी नाउ इज स्ट्राइविंग टू मेक अ मार्क. पहले जमाने में शायद 100 में से 10 लोग ऐसे होते थे जो राइज करना चाहते थे और दूसरों से आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन आज के जमाने में हर कोई राइज करना चाहता है. कंपटीशन इतना बढ़ गया है, ऑनलाइन कंपटीशन भी इतना बढ़ गया है
एंड एज लॉन्ग एज वी डू नॉट फॉलो सम मेथड्स और टेक्निक्स, तो हमारे ड्रामेटिकली रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आते हैं, इन स्पाइट ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो हमको हार्ड वर्क तो करना ही करना है, बट वी नीड टू बी लिटिल स्मार्ट। हमको स्मार्ट वर्क करना भी सीखना है, हमें कुछ टेक्निक्स भी सीखनी है। और ऑफन हमको पेरेंट्स या टीचर्स कहते हैं कि भाई पढ़ाई करो, प्लीज स्टडी, बट वी हैव नेवर बीन टोल्ड कि हाउ टू स्टडी। वी हैव बीन टोल्ड concentrate, why don't you concentrate, but we've never been told how to concentrate. Yes, they say कि टाइम वेस्ट मत करो, टाइम मैनेज करो, लेकिन किस तरह से टाइम मैनेज किया जाए ये नहीं बताया गया है। तो आज इन सभी प्रश्नों के जवाब मैं आपको देने वाली हूँ कि किस तरह से इंटरेस्ट से लेके परफॉर्मेंस इन द एग्जाम कैसे किया जाए, ये मैं शुरू करती हूँ। ठीक है, तो अपना फर्स्ट जो पॉइंट है, एलिमेंट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंटरेस्ट। तो हम थोड़ा सा साइंस के साथ भी इसको रिलेट करेंगे, थोड़ा सा इमोशंस के साथ भी रिलेट करेंगे। आपको पता है कि हमारी बॉडी में कुछ 5 हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, कुछ सैड हार्मोन्स होते हैं, राइट? तो जैसे डोपामाइन करके एक केमिकल रिलीज होता है हमारे बॉडी से जब हम कुछ अचीव करते हैं, राइट? जैसे आपने कोई टारगेट अचीव कर लिया, छोटा सा कुछ भी काम आपने ठीक से किया, तो आपको पता है बहुत खुशी होती है अंदर ही अंदर, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली, अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि हमारे अंदर से जो डोपामाइन हार्मोन है वो रिलीज हुआ है। इसका मतलब किसी भी चीज में अगर इंटरेस्ट लेना हो तो हमारे अंदर से डोपामाइन हार्मोन रिलीज होना चाहिए, है ना? और अगर हम सैड होते हैं या अपसेट होते हैं या हमें डांट पड़ जाती है तो हमारे अंदर से एक सैड हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम होता है कोर्टिसोल, राइट? तो जब हमको डांट पड़ने के बाद पढ़ाई करने के लिए बोला जाता है तो हमारा मन फिर भी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमारा ये हार्मोन हैम्पर करता है हमारी स्टडी। और डोपामाइन जो है हमको एलिवेटेड मूड में रखता है और हम ग्रास्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों पे लागू होता है। आपने वीडियो गेम खेला होगा, आप लेवल 1 पास कर लेते हो तो यू फील हैप्पी, देन यू गो टू लेवल 2, लेवल 3 एंड सो ऑन। तो ये चीज जो है वो हर सब्जेक्ट पर लागू, every subject in this world, everything in this world, every field of interest that you go to, आपको ये लेवल पास करना पड़ता है। एंड इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए वन इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिक फैक्टर इज यू शुड गो फ्रॉम इजियर टू टफ, है ना? तो कोई भी चीज में इंटरेस्ट लेने के लिए पहले आपका मूड एलिवेटेड होना चाहिए, सेकेंडली डोपामाइन रिलीज होना चाहिए, है ना? तो अब जब हमने समझ लिया है कि हमें डोपामाइन रिलीज करना है, मतलब एक छोटा सा टारगेट अचीव करना है। और फॉर एग्जाम्पल जनरली आजकल तो बच्चों को मैथ्स पसंद आता है, हमारे जमाने में मैथ्स बहुत टफ लगता था, ठीक है? तो अगर आपको मैथ्स टफ लगता है और उस सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आती है, तो आपको क्या करना है? पहले आपका फेवरेट म्यूजिक आप सुन लीजिए, जिस चीज से आपका मोटिवेशन हाई हो जाता है, जब आप एलिवेटेड स्पिरिट में चले जाते हो। आप वो अगर ऑनलाइन क्लास है, मान लीजिए मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ही आपको बता रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ही बता रही हूँ क्योंकि अभी आप घर पे हो। तो आपकी क्लास शुरू होने से पहले आप थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए, थोड़ा सा एलिवेटेड मूड में चले जाइए और प्रीवियसली जो मैडम ने पढ़ाया है उसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए। इन दैट केस जब आपको थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हो उससे, तो आपको वो चीजों में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है और आप कुछ इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जब आप कुछ इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको डोपामाइन रिलीज होगा एंड यू विल फील हैप्पियर एंड बेटर। तो आप जैसे 1.1 एक्सरसाइज में कुछ एमसीक्यूज होते हैं, फर्स्ट में इजियर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में भी दिए जाते हैं, इसी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हैं। कुछ इजियर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, जब आपको वो हो जाएगा आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आप कॉन्फिडेंट होने के बाद आपको इंटरेस्ट डेवलप ऑटोमेटिकली, ठीक है? तो थोड़ा सा रिवाइज करके आप जाएंगे, थोड़ा सा चैप्टर के बारे में पढ़ के जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ठीक है? ये हो गया है इंटरेस्ट वाला फैक्टर। सेकेंड फैक्टर आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। जस्ट 1 मिनट एक्सक्यूज मी। जी, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए भी मैं आपको अभी एक बताने वाली हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बट बिफोर दैट मुझे लगता है उसमें बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है सब्जेक्ट को एनरिच करने के लिए, लर्न करने के लिए, ठीक है? अब क्या करें अगर समझ में नहीं आ रहा है?
मे बी समटाइम्स हमें टीचर की भाषा समझ नहीं आती है, समटाइम्स हमें टीचर का वे ऑफ स्पीकिंग समझ नहीं आता है,